ठीक है, ओके ठीक है. सो वी हैव जस्ट रिकॉर्ड वी व्हाट वी हैव लर्नड इन द फाइल हैंडलिंग. ठीक है, आई विल शो यू द programs here as well. So this is the file that I have shared with you, and again I will share this file with you. ठीक है, where all the examples, seek function, ठीक है, seek renaming the file. ठीक है, I have created notes. So renaming a file, what split, strip, replace. ठीक है, this we have already. Now we are discussing a new topic. ठीक है, string join. ठीक है, this will also help you in string handling and file handling, because file is nothing just a content that is the string in the in file. ठीक है, so the next is a python string join method. Python string join method. ठीक है, it is a different from the join method that we discussed. Do you remember this os.path.join? These two are different. ठीक है, इसमें क्या करते थे, os.path.join, we join the path of a file with the directory. ठीक है, and in this we are joining a string. ठीक है, so python string join method is a string method and returns a string in which the element of the sequence have been joined by str separator. Now I will tell you the example कैसे करेंगे. ठीक है, and what will be the syntax. So the syntax क्या है, string name. ठीक है, dot join, string name dot join, and after that iteratable, string name dot join, after that iteratable. ठीक है, now see the example here. ठीक है, देखो इटरेटेबल मीन्स एनीथिंग, जैसे कि कुछ भी आपके लिस्ट हो सकता है और एनीथिंग एल्स. ठीक है, एंड स्ट्रिंग मतलब द सेपरेटर दैट यू वांट टू यूज टू ज्वाइन. ठीक है, और ये क्या करेगा, व्हाट इट विल रिटर्न यू अ स्ट्रिंग. इट विल रिटर्न यू अ स्ट्रिंग. ठीक है, सो सपोज आई हैव अ दिस लिस्ट वन. ठीक है, एंड इन दिस लिस्ट आई हैव फोर एलिमेंट, 1 2 3 4, you can have any number of element. ठीक है, and I am using this dash sign. I am using this dash sign to join all of them. ठीक है, so मैं क्या करूंगा, I will write s.join and list का name, s.join list का name. ठीक है, और फिर उसको प्रिंट कर देंगे. फिर से देखिए, सपोज यू आर हैविंग एनी लिस्ट हेयर, कुछ भी वॉट एवर यू वांट. सपोज मैंने रोहित लिख दिया यहाँ पे, देन मोहित, एंड देन प्रज्ञा. ठीक है, and then suppose Akshit and any other like Shrey. ठीक है, and suppose you want to use a space to join them. मैं क्या करूंगा यहाँ पे, just I will write this space. ठीक है, एक स्पेस लिख दिया. Now my names equals to s dot join और उसमें लिस्ट का नेम. ठीक है, इसको प्रिंट कर देते हैं. Anyone can expect what will be the output? Anyone can expect what will be the output? So all the names comes. Yes, all the names. ठीक है, all the names and that are separated by space. ठीक है, so see, रोहित, मोहित, प्रज्ञा, अक्षित, श्रेय. So output will be a string. ठीक है, मैं इसका टाइप चेक कर लो आप, names dot और typ. So टाइप क्या होगा आपका, str. names dot
just a minute. Yeah, ठीक है. So check कीजिए. So the what it will return you a string. ठीक है. And how you are joining them using space. ठीक है. You can use anything. जैसे कि और एक example देते हैं. Names 2 कर दिया. And now instead of using this, now this time I'm using plus sign. This time I'm using plus sign. So what will be the output? Rohit plus Mohit plus Pragya. Rohit plus Mohit plus Pragya plus Akshit plus Ray. So this will be the output. So you are Excuse joining me, sir. them. Ah, yes. So my name is Shrey, SHREY. Can you move A? Okay, sorry. ठीक है. Now it is fine. ठीक है. तो Yeah. this is ठीक है. Okay, fine. ठीक है. तो हम क्या करते हैं? S dot and if you want to read the documentation, this is the documentation. S dot join iterable comma this concatenate any number of strings. ठीक है. The strings whose method is called is inserted in between each given string. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे डॉट का साइन किया. ठीक है. क्लियर है? ओके. सो द नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल्स था यहाँ पे. वन मोर एग्जाम्पल्स. ठीक है. क्लियर है दिस वन? Yes, sir. ठीक है. ओके. ओके. सो अब नेक्स्ट है पाइथन स्ट्रिंग. ठीक है. नाउ कॉपी फाइल इन पाइथन. कॉपी फाइल इन पाइथन. ठीक है. अभी हमने कैसे कॉपी किया था? इफ यू रिमेंबर, वी जस्ट ओपन टू डिफरेंट फाइल्स and we have read the content of the one file and we have write the content of this file into another file. Yes or no? If I told you just copy the content of one file into another file, तो आप क्या करेंगे? You will just open a file in the read mode. ठीक है. read mode में open करेंगे. Then you will read the file line by line. line by line इसको read करेंगे. Then you will write this line into another file. और दूसरी फाइल को you have to open in the write mode. ठीक है. And after doing these operation, you need to close the file. ठीक है. So using this way you can copy the content of one file into another file. ठीक है. Now there is one more library that is SHUTIL. ठीक है. So instead of doing this, you can directly copy one file into another file. जैसे कि आप करते हैं ना विंडो में कॉपी पेस्ट, Control C copy, Control V paste, or just right click on any file copy and then just right click and then paste. करते हैं ना? तो similarly you can do these things here. ठीक है. So instead of reading the file, we will not read the file line by line. We are not going to read the file. We just use a command that will take the location of the file, that is the directory, and then it will copy the file into another file name. ठीक है. So SHUTIL library. ठीक है. SHUTIL library. ठीक है. SHUTIL module in Python provides many functions of high level operations on the file. ठीक है. And collection of files कई सारे हैं. It comes under the Python standard library module. ठीक है. And these will help you in doing some automatic copying and removing. So I will tell you these methods. ठीक है. So now we are just writing import import SHUTIL import. ठीक है. So we have imported this library SHUTIL. ठीक है. Now see SHUTIL
til dot tab. See how many modules are available. chown, chown, collection, copy, ठीक है, copy to, copy underscore buff size, copy file object, copy start, tree, disk uses, error, ये सारे methods हैं. But all of them are not included in your syllabus. In your syllabus, just copy and remove two methods are there in your syllabus. ठीक है. Uh, and I can motivate you to learn this. I will show you something here. Just a minute. So you can see what is chown, what is these methods. I need to open my O12. Just a minute. Just a minute. I am opening my another machine, and I will show you these modules that you are going to learn in Python are already available in Ubuntu operating system. So Ubuntu operating system already built all these things. Just a minute, it will take only few seconds. Sir, then we can download Ubuntu software. Ubuntu is not a software, it is an operating system. जैसे कि just like window, it is just an operating system. It is an open source and window, for window you need to pay. जैसे कि आप लोग लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप में इनबिल्ट विंडो आता है, and you can find the laptop which doesn't have window, so they have DOS operating system or Ubuntu based operating system. So before coming Bennett University, I was using Windows-based operating system, but here I need to switch from Ubuntu to Windows. Okay. So now I will open the terminal. Just a minute. Open the terminal. Switch in the control F. Okay. I think now full screen is visible. Okay. Yes. See. देखो इसको फॉन्ट कैसे बढ़ाएंगे. आई नीड टू चेक ये विजिबल है कि नहीं फॉन्ट. ओके आई विल चेक हाउ टू इंक्रीज द फॉन्ट. देखो मैं आई एम जस्ट यूजिंग ls. आप देखिए. ओके ls माइनस la. देखिए सो कुछ भी नहीं है अभी. अब नाउ आई एम गोइंग टू अनदर डायरेक्टरी. ओके instead of opening from here. Okay, I am opening from here my terminal. ठीक है. See, I am using ls minus la command. अब देखिए it is displaying the content of my current working directory. ठीक है. Python में हम कैसे करते हैं os dot list dir. os dot list dir. तो वो क्या करता है os dot list dir, it will display the content of the current working directory. और ubuntu में क्या command है ls minus la. So these are inbuilt. Instead of just displaying, it will display something extra things, but for this you need to learn ubuntu. So I can't tell ये permissions होती हैं जैसे कि आप लोग की फाइल्स की परमिशन होती है ना, whether it is a read file or it is a read only or you can write in this file as well. ठीक है. whether the file is hidden or not. ठीक है. whether it is a directory or it is a file. तो कई सारी चीजें होती है. So all other things are there. इन ये डेट रहती है, ये साइज रहता है इनका, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. तो ये जो ब्लू साइन है दैट विल इंडिकेट ये डायरेक्टरी है, और ये वाइट वाले हैं दैट विल इंडिकेट दिस इज अ फाइल है. डॉट बताता है कि ये हिडन फाइल है. डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. सो सेम काम आप कैसे करते हैं ubuntu में. ठीक है. मैं एक फाइल क्रिएट करके कॉपी करके दिखाता हूँ. gedit r.txt एक फाइल क्रिएट की मैंने, कुछ भी लिख दिया मैंने, सेव कर दिया एंड क्लोज कर दिया. ठीक है. अब देखो एक कौन सी फाइल है r.txt. अब देखिए यहाँ पे ये r.txt विजिबल है. यस और नो. This r.txt is visible to you.
एटलीस्ट से यस और नो, तो मुझे Yes, पता sir, लगेगा। it is. या इसको Yes, कॉपी yes. करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट आई विल राइट cp r.txt एंड कोई भी न्यू नेम दे दीजिए। कॉपी हो गई फाइल, जस्ट अ सिंगल, एक सेकंड भी नहीं लगा। देखिए दिस न्यू फाइल r_new.txt is created, same content है। So we are not opening the file, we are not reading the content, and we are not writing this content into another file. We are just using as command cp and old file name space new file name, and just we are just copying. So similarly in Python we can use shutil library, and under this library we can use copy module to copy the content of one file into another file, just a single line। ठीक है। एक आपको मेथड याद होगा, मैंने बताया था CHOWN, दैट इज कॉल्ड चेंज ओनरशिप, दैट इज कॉल्ड चेंज ओनरशिप। जैसे कि अभी मैं इस फाइल की ओनरशिप बताऊं आपको, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इट इज विजिबल परमिशन, इट इज विजिबल परमिशन, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हेलो, हेलो, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। What's his name? हु इज दिस, कहाँ से आवाज आ रही है? हेलो, ओके ठीक है। सो आपको एक मेथड याद होगा, मैं फिर से रिकॉल करूँ। देखो यहाँ पे CHWN चेंज, इसको कहते हैं, वी कॉल दिस चेंज ओनरशिप। CHWN चेंज ओनरशिप, देखिए ठीक है। चेंज ओनर यूजर एंड ग्रुप ऑफ द गिवन फाइल। तो अभी आई थिंक यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज ओनरशिप, क्या ग्रुप होते हैं, यूजर्स होते हैं, बिकॉज यू आर नॉट टू मच फेमिलियर विद द कंप्यूटर साइंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, बट दिस मेथड इज यूज टू चेंज द ओनरशिप। ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं अपने Ubuntu में बताता हूँ। देखो एक फाइल थी, एंड फाइल में देर आर थ्री थिंग्स, ओनर, ग्रुप और अदर। देर आर थ्री, तीन चीजें होती है। ओनर दैट मीन्स हु क्रिएटेड दिस फाइल, ग्रुप जैसे कि सपोज इन माय ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव क्रिएटेड अ ग्रुप, और अदर्स जैसे गेस्ट एक्सेस किया। सो द ओनरशिप क्या है इसकी, ओनर रीड एंड राइट कर सकता है, ग्रुप रीड एंड राइट कर सकता है, बट अदर अदर कैन ओनली रीड, अदर कैन ओनली रीड। आप विंडो में देखेंगे ना, मैं विंडो का भी दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। कमिंग टू अवर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज मैं एक फाइल ले लेता हूँ, एक डेट फाइल है ये, ठीक है। इसमें मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज। तो देखिए अभी इस पे लिखा नहीं है ना, इट इज रीड ओनली, मतलब कि आई कैन रीड एंड राइट बोथ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रीड ओनली पे क्लिक कर दूं और अप्लाई कर दूं, ओके कर दूं, फिर मैं इसको ओपन करूं, और फिर मैं इसमें कुछ लिख के अगर मैं सेव करूं तो ये सेव होगा। वो दूसरा नाम मांग रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसके परमिशन चेंज कर दूं, डोंट सेव, फिर से अगर मैं इसको रीड ओनली हटा दूं, हटा दिया, ठीक है। अब इसको अगर हमें चेंज करना हो तो आई कैन चेंज, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया 32, कल आपका लेक्चर है 501, क्लोज किया, देखो सेव हो गया ये ऑटोमेटिक, सेव कंट्रोल एस किया है मैंने जस्ट, और सेव हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओनरशिप। ठीक है, तो ये क्लियर है ना ओनरशिप क्या होता है। बट दीज आर नॉट आई थिंक इन योर डिटेल इन योर सिलेबस, बट यू मस्ट नो बिकॉज यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी विल लर्न कॉपी एंड रिमूव, टू मेथड्स वी विल गोइंग टू लर्न। ठीक है, तो कॉपी देखते हैं। देखो देर आर कॉपी, कॉपी टू, कॉपी फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसको देखते हैं। ठीक है, सो देखें SHUTIL that is library name dot copy bracket source src destination and some other things। ठीक है, ये क्या करता है,
कॉपी डेटा एंड मॉड बिट्स, ठीक है, and return the file's destination. It will return the file destination. The destination may be a directory as well. ठीक है, if follows symlink is false, अगर इसको false कर देते हैं won't be followed for, तो ये GNU you know that is other things, we will discuss them also. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है. सो वी यूज दिस import shutil library. नाउ दिस इज माय सोर्स, कोई भी एक फाइल है, I have given the full path name, ठीक है. If you are working in the current working directory, so you can use any file name only. If you want to copy for another file which is not available in the current working directory, then you need to specify the whole path, ठीक है. So देखिए, so intro.txt is available here. intro.txt किस डायरेक्टरी में, एक कोई lectures folder है under this, तो I will show you this. Okay, this is visible. intro.txt, ठीक है, देखो इसमें लिखा है रोहित अग्रवाल ओनली, ठीक है. तो इस फाइल को वी आर गोइंग टू कॉपी, ठीक है. सो डेस्टिनेशन पाथ क्या है मेरा, सेम फोल्डर में, बट फाइल नेम मैंने चेंज कर दिया, मैंने फाइल नेम रख दिया intro_new.txt, ठीक है. और मैंने क्या यूज किया, shutil.copy फाइल, ठीक है, shutil.copy file, or you can use just copy only, you can use just copy. So shutil.copy file bracket में source path comma destination path and just say, ठीक है. So intro_new.txt, देखिए this intro_ this is created, ठीक है, क्लियर है, this is clear. Sir, can you explain this again? Yeah, देखो, we are copying one file, जैसे कि आप लोग विंडो में करते हैं ना, राइट क्लिक कॉपी, ठीक है, एंड जस्ट राइट क्लिक पेस्ट, कॉपी पेस्ट मतलब एक फाइल को कॉपी करना है, एंड द सेम फाइल यू वांट टू पेस्ट इन विथ अनदर नेम, ठीक है. सो मेरे पास एक फाइल है, आई हैव अ फाइल intro.txt, ठीक है. आई वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस फाइल, आई वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस फाइल. तो इसमें बस एक कमांड है, लाइब्रेरी shutil.copy फाइल, ठीक है, सोर्स पाथ मतलब विच फाइल यू वांट टू कॉपी, ठीक है, फुल पाथ, एंड डेस्टिनेशन मतलब इन विच फोल्डर, इन विच नेम यू वांट टू copy this file. So I want to copy this file intro.txt which is available here into new file जिसका नाम है intro_new.txt, और जिस किस लोकेशन पर, द सेम लोकेशन, ठीक है. इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर से दिखाता हूँ. इसको मैंने डिलीट कर दिया फाइल को, देखो डिलीट हो गया. आई ओनली हैव दिस intro.txt फाइल. इसको रन करते हैं, ठीक है, रन करने के बाद चेक करते हैं, देखो ये आ गया intro_new.txt, Yes. ठीक है. ओके, you can copy this file into another location as well. देखिए source file, destination, what is the difference between these this example and the above example. above example में मैंने क्या किया था, फाइल का नेम I have given the new file name intro_new.txt, but this time I am not giving any new name, ठीक है. मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ, एक पाथ दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द पाथ. तो इस पाथ में क्या होगा, दिस फाइल विल बी कॉपीड और विद द सेम नेम, नाम चेंज नहीं होगा दिस टाइम, विद द सेम नेम यू आर कॉपिंग दिस फाइल, यू आर कॉपिंग दिस फाइल फ्रॉम दिस डायरेक्टरी इनटू दिस डायरेक्टरी, जस्ट लाइक दिस. जैसे देखो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, जस्ट लाइक क्लिक इट, यहाँ पे गया है, कॉपी करते हैं,
ठीक है, किसी और एक लोकेशन पर जाते हैं, इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, किसी भी लोकेशन पे, डजंट मैटर, जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट है, हाँ ये पेस्ट पहले से है, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट होता है ना फाइल को, देखो कॉपी पेस्ट हो गया ये। ठीक है, इसको अब डिलीट कर देते हैं और यूजिंग पाइथन प्रोग्राम देखिए। ठीक है, सो हमने क्या कि इस फाइल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करना है। सो बस shttil.copy source path destination path. In the destination path you are not giving the file name you are not giving, so the same file name will be taken as, देखिए क्लियर है। अब फिर से फोल्डर पे जाते हैं, देखिए ये फाइल क्रिएट हो गई, क्लियर है, Yes. यस और नो। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब इसमें हम एक रिमूव वाला भी देख लेते हैं, आई थिंक ये नोट्स में है कि नहीं, देखते हैं। ओके, ये आपको बाद में बताएंगे, ट्राई एक्सेप्ट। अब रिमूव मेथड देखते हैं। ओके, SHUTIL डॉट रिमूव, नहीं रिमूव नहीं है इसमें, चेंज, चेंज ये आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, चेंज ओनरशिप कलेक्शन। ठीक है, मूव, देखो एक मूव मेथड भी है। मूव में क्या करते हैं, रिकर्सिवली मूव अ फाइल और डायरेक्टरी टू अनदर लोकेशन, दिस इज सिमिलर टू द यूनिक्स का मूव कमांड होता है ना, जैसे मैंने ubuntu में cp कमांड यूज किया था। तो मैं एक और शो करता हूँ, जस्ट देखिए यहाँ पे, अभी कहता है यहाँ पे r.txt फाइल है, r_new.txt फाइल है। ठीक है, अब एक होता है कॉपी पेस्ट, एक होता है कट पेस्ट, डू यू रिमेम्बर नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट? Yes, sir. तो बस सेम है, अभी हमारे पास r.txt फाइल है, अब हम इसको कट पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कट पेस्ट देखिए, तो मैंने क्या किया, मूव r.txt फाइल, और कहाँ पे करें इसको, हम्म, home, ठीक है, मैं यहाँ पे कट पेस्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर, देखना डेस्कटॉप पर अभी r.txt फाइल नहीं है, ये डेस्कटॉप है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू, देखो तो r.txt कट होके कहाँ पे पेस्ट हो गई, डेस्कटॉप पर। देखिए डेस्कटॉप पर r.txt आ गया ये, और पहले यहाँ पर था, यहाँ से कट हो गया। ठीक है, तो एक होता है कॉपी पेस्ट, एक होता है कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट में बोथ द फाइल विल रिमेन, जहां से कॉपी कर रहा है पेस्ट कर रहा है। कट पेस्ट में फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम द सोर्स लोकेशन, फ्रॉम द सोर्स इट विल डिलीट, और फिर डेस्टिनेशन पर पेस्ट। तो सिमिलरली इन पाइथन, ठीक है, नाउ कमिंग टू पाइथन, जस्ट अ मिनट, या नाउ कमिंग टू पाइथन, सॉरी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, os.move, इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को करते हैं, बस थोड़ा चेंज कर देंगे। कॉपी की जगह हम लोग क्या करेंगे, मूव। ठीक है, तो डेस्टिनेशन पाथ अब क्या होगा यहाँ पे, मूव। ठीक है, ये जो फाइल है intro.txt फाइल, यहाँ से कट हो जाएगी, कट हो जाएगी, और कहाँ पेस्ट करना है, सपोज यहाँ पर BCA103 पाइथन यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, इसको रन करें, एक मिनट, यहाँ से पहले डिलीट करते हैं, ये फोल्डर है, हाँ इसको डिलीट कर देते हैं पहले। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लियर है, अब देखना सोर्स कहाँ पे था, पहले हमारा लेक्चर,
और यहाँ पे intro.txt थी. Can you find intro.txt now? No. ठीक है. intro.txt is cut. और कहाँ पे पेस्ट हो गई है? We have pasted here. क्लियर है? Yes or no? Yes, just let me ask that. You have laptop now? मेरे पास एक ही लैपटॉप है. इन वन लैपटॉप आई हैव इंस्टॉल्ड अ वर्चुअल मशीन, और उस वर्चुअल मशीन में आई एम यूजिंग द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अभी मैं एक ही लैपटॉप पे दोनों काम कर रहा हूँ, बट इन अनदर लैपटॉप आई हैव विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. आप डोंट थिंक टू मच कि दो लैपटॉप एक लैपटॉप है. आप जस्ट फाइल हैंडलिंग में फोकस कीजिए. आपको ये समझ में आ रहा है ना, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट हाउ इट इज वर्किंग. मैं कैसे क्यों विंडो मतलब Ubuntu पे शो कर रहा हूँ, बिकॉज यू कैन थिंक दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन अवेलेबल इन इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये विंडो में भी अवेलेबल हैं, but you can write your own program to do all these tasks that is available in the operating system. तो जो operating system ऐसे ही लिखे जाते हैं, small small सब programs को इंटीग्रेट करते हैं वो लोग. जैसे कि एक कॉपी पेस्ट बताया, चेंज ओनरशिप है, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं छोटे छोटे. मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स बन जाते हैं वो, और फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है. क्लियर है? तो ये कॉपी एंड मूव. ठीक है. Is it fine? Please respond. Yes, sir. Okay, ठीक है. तो फिर then this is for today. Then we will discuss tomorrow the next thing, other thing. Now just let me know. Do you want a new topic to be discussed, or because you are having exam, so you want to just revision or a new topic? Revision. ठीक है. अगर रिवीजन करना है देन जस्ट लेट मी नो. मैं मतलब रिवाइज की फाइल प्रिपेयर करूं, और इफ यू वांट टू डिस्कस न्यू टॉपिक देन उसके हिसाब से. ठीक है. तो रिवीजन करते हैं 2 दिन. क्लियर Yes, है? sir. ओके ठीक है. कुछ भी प्रॉब्लम हो देन जस्ट लेट मी नो. ठीक है. Sir, देन one वी विल doubt. मीट. या यस. Sir, हाँ यस. syllabus. What syllabus? Kantakar, हाँ, syllabus. This सिलेबस आई topic. थिंक सिलेबस मैंने बताया था आपको. Last slide, though, last slide. वो देखो 31. सिलेबस में क्या होगा आपका, मॉड्यूल 1 होगा, मॉड्यूल 2 होगा. जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग कोर्स हैंडआउट. देखें, ये मॉड्यूल 1 इट इज कंप्लीटेड. ठीक है. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन LMS. ठीक है. और मैंने आपके CBR को भी मैसेज किया था. मॉड्यूल 2 पूरा होगा. ठीक है. एंड मॉड्यूल 3 में वी हैव डन दीज थिंग्स, बट पूरा नहीं करेंगे. वी विल डू अप टू दिस. यहाँ तक करेंगे सिर्फ. ठीक है. क्लियर है? And exam will be MCQ based, right? नहीं नहीं, एग्जाम में क्या होगा आपका, तो 2 आवर का एग्जाम होगा. इसमें आपके MCQ के 25 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे. 25-30 मे बी 20, आई विल चेक. और फिर 5 क्वेश्चंस आपके कोड जिंजर पर प्रोग्रामिंग के होंगे. ठीक है सर. तो लैब और वो कंबाइंड है, और ये मॉड्यूल 3 में सिर्फ ये 3 टॉपिक्स है ना जो आएंगे? हाँ, मॉड्यूल 3 में 3 टॉपिक्स हैं जो आएंगे. मैंने अब फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, सॉरी यहाँ तक बताया था. ये 4, सॉरी ये 4. मैंने अभी जस्ट मैसेज चेक कर रहा था. मैंने आपके BR को आई थिंक मैसेज किया था. सर फॉरवर्ड कर दिया था मैंने. हाँ ओके ठीक है. तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में 4 टॉपिक्स रहेंगे, मतलब यू कैन से 2.5 मॉड्यूल्स. ठीक है. और 2 आवर का टाइम होगा. 20 to 30 क्वेश्चंस MCQ बेस रहेंगे, जैसे कि हमारी क्विज 1 क्विज 2 में थे.
एंड 5 क्वेश्चंस आपके प्रोग्रामिंग के रहेंगे, जैसे कि आपके लैब एग्जाम 1 लैब एग्जाम 2 में थे। सॉरी, लैब एग्जाम एक ही हुआ, एक लैब एग्जाम में थे। ठीक है, 2 घंटे में आपको दोनों सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है। और ठीक है, कोड सेफ के लिए मैं फिर से रिकॉल कर दूं, डोंट पैनिक, क्योंकि ये थोड़ा टफ होगा। इसके मार्क्स इफ यू वांट टू ऐड मैं ऐड कर लूंगा, इफ यू डू नॉट वांट टू ऐड आई विल नॉट ऐड, बट इट्स कंपलसरी टू गिव। ठीक है। और बोनस, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वेदर दे आर रॉन्ग और राइट, अगर वो रॉन्ग भी हैं, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, देन इन माय हैंड आई हैव सम मार्क्स, देन आई विल गिव यू दीज मार्क्स एज अ बोनस सर मार्क्स। तो ठीक ये है। मार्क्स क्या एग्जाम में काम आएंगे, अगर एग्जाम में कम आए हैं सॉर्ट ऑफ तुम हाँ हाँ, अगर आपके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं और अगर आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कोड टाइप के, चाहे वो रॉन्ग हो, वेदर दे आर रॉन्ग और राइट, ठीक है, देन आई विल गिव यू सम एडिशनल मार्क्स इन योर फाइनल एवोल्यूशन। ठीक है, कुछ इंटरनल Okay, मार्क्स sir. रहते I हैं। will ठीक है, recall. हाँ, कुछ इंटरनल मार्क्स दैट आर इन माय हैंड, सो क्लियर।